हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का जो है चैप्टर, जिसमें आज हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग इंडियन हिस्ट्री, यानी भारत के इतिहास को समझना। सबसे पहले तो हमारा भारत का इतिहास समझना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है कि भारत का इतिहास क्या है। ये टॉपिक जो रहेगा कई मानने में कई क्लास के बच्चों को इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो जो यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इवन कि बीए वाले बच्चों के लिए भी जो है ये कई मायने में इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic here is a account of the foregone travelers. There is a most important here. Their accounts of the foregones are travels. Their indigenous is literatures can be supplemented by the foregone accounts. To India come Greek, Roman, and Chinese is a visitor, either as the ambassador as the travel or to seek religious and knowledge from time to time. They have left behind on account of the things they say to be a court of the Chandragupta Maurya is come to Greek is a ambassador is called is a Megasthenes, and who is a wrote a Indica. The Megasthenes is who is written to the Indica. Its original text is a lost, but part of it has been to the preserved to the fragment acquired by the quaint Greek writer. When they read together, this is a fragment of furnish is available information not only about the administration but also social class and economical activity of Maurya period. There is a most important here. Indica, the magazines there who is wrote Indica. There is the times of Chandragupta Maurya and Greek ambassador. There is the most important here. Greek and the Roman account of 1st and 2nd centuries is a mention many Indian port and commodities of trade between India and the Roman Empire. The very plus is there are Athens, she and the Potamines of the zero fix and both written in the Greek and provide to valuable data in this regard. Of the Chinese travel, mention may be made of the Fascinoid and the instance. Both of them is a Buddhist and come to, and this is a country mainly to visit the Buddhist sharings and the study of Buddhism. Ephesians, who has come to India in the 5th century AD, describe the condition in India in the age of Guptas, where Hushan's tank present of similarly account of India in the 17th century during the time of King Harshvardhana. The Harshvardhana Husan Tang is also described in a detail. The gallery of Nalanda universities is Bihar during this time. There is a most important area of Nalanda University is Bihar on this time. यहाँ पर दोस्तों जो हमारे समक्ष आया है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। देखिए, बहुत से विदेशी यात्री आए जो हर जगह घूम घूम के आए और उन्होंने हर तरह के वृत्तांत को जो है अपने लिखा, और काफ़ी ये इम्पोर्टेंट तत्व के रूप में भी देखा जा सकता है। स्थानीय साहित्य से प्राप्त जानकारी को विदेशियों द्वारा दिए गए वेरों से और बढ़ाया जा सकता है। भारत में समय समय पर जो है ग्रीस, रोम और चीन ने जो है अंगातिक आते ही रहे हैं। भारत में देखा जाए तो हर एक समय में
कोई ना कोई जो है इतिहासकार जो है भारत में यात्रा किए हैं और उन्होंने जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान भारत के इतिहास के लिखने में योगदान दिया है। कोई राजदूत बनकर, कोई यात्री के रूप में, तो कोई धर्म के अध्ययन के लिए यहाँ पर आए हैं और उन्होंने बहुत सी बातें को जो है अपने जो है लेखों में सम्मिलित किया है। उन्होंने जो कुछ देखा वो उसका वृत्तांत छोड़ गए और उन्होंने अपनी किताबों में लिख गए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है मेगास्थनीज जो नामक ग्रीक राजदूत आया था, जिसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था, जो कि ग्रीक राजदूत था और इसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा और इसका मूल्य पाठ आज नहीं मिलता है, लेकिन इसके कुछ अंश पर्वतीय ग्रीक लेखकों की रचनाओं में जो है उद्धरणों के रूप में सुरक्षित रह गए हैं। इन्हें एकत्र करके पढ़ा जाए तो हमें मौर्य काल की प्रशासन व्यवस्था ही नहीं बल्कि सामाजिक वर्गों और तथा सामाजिक गतिविधियों का भी मूल्य जानकारी हमें मिलेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आता है। पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी के ग्रीक और रोमन व वृत्तांतों में कई भारतीय जो है बंदरगाहों का और उन वस्तुओं का उल्लेख हुआ है जिनका व्यापार भारत और रोमन साम्राज्य के बीच होता था। इस संदर्भ में ग्रीक में लिखे ग्रंथ एरथ्रियन सी और जो है टायलेमी जो है ग्राफी बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध कराता है। यानी ये जो दो बुक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको एरथ्रियन सी और जो है एटोमल की जो है जायोग्राफी बहुत ही बहुमूल्य माना गया है उस समय के लिए। कहते हैं चीनी यात्रियों में जो है अफियान और जो है हेवेनसांग का नाम लिया जा सकता है। दोनों ही बौद्ध थे और इस देश में बौद्ध तीर्थ के दर्शन तथा बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आए थे और ईसा की 5वीं शताब्दी में भारत में आए। जो फरहान के जो है गुप्तकालीन भारत की स्थिति का वर्णन भी किया, यानी फरहान ने जो है गुप्तकालीन भारत की स्थिति का वर्णन भी किया, जबकि हर्षत्यांग ने शताब्दी में सदी में जो है राजा हर्षवर्धन ने कला का वैसा ही ब्यौरा दिया। यानी स्वैगान ने उस समय का जो नालंदा विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट का भी बड़े विस्तार का वर्णन किया था। यानी देखा जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में, उसका भी उन्होंने बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया था। किसने? हर्वेश संघ ने, यानी हवेनस सर्ग ने बहुत ही खूबसूरती का नालंदा विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया था। The next era are most important are changing notions of history. That is the most important here. It was suggested particularly by Western scholars that ancient Indians had no sense of the written history. But it is not true. There is not true but actually Indian as a sense of written history was different from that of the Westerner. The people from their best recorded even is a chronologically and order will their ancient Indian wrote in their different manner. It can be seen in the text is called to the Puranas, and there is a 4 different ages called Krita, Terita, Devapura and the Kalis are mentioned. There is the most important, and in each age we get a detailed list of the rulers and syntastics. Besides, there is a large number of inscriptions has been to discover. This gives a genealogies of king of various dynasties and also refer to their achievements. It shows that India had their basic knowledge of time and the space where events were taking place. There is a most important. The modern research in the ancient India history is began in the 1765 when the East India is the company took control of Bengal and Bihar. In order to administer their Hindus law Manu Samriti, the ancient Indian text on the law was translated into the English in 1776. This initiated of effort of the British to understand the ancient law and the custom. And there is a culminated in the establishment of the Ascetic Society of Bengal in 1784. Under it is the ethics and that of the several other such a society, Hindu religious and classical texts were translated into English. The greatest impetus to the Indological study was given by Max Muller and German-born scholar. Soon the British realized that they are needed
and intense is the knowledge of Indian scripture and social system to rule them better. Even the Christians is the missionaries left their need now more about the Indians' law and the custom in order to converted them and the help to the British strength and their rule. Well, the translating their text, Western scholar write about the Indian unwillingness to be their change and they began to the customized to despotic rule. There is a most important here. In 1904, is Vincent R. Smith wrote a real history of India. It was the first systematic history of ancient India. In this book, his approach to the history was a pro-British and he tried to justify the British rule in India. It has served a good is a propaganda is a material for their speculations of despotic British rule. This India scholar carefully studied ancient India texts on the volatile to demonstrate that ancient India had a keen sense of administration. Dr. There's a Bhangekar is 1875 to 1950 and the epigraphist is a published book on the ancient India is a politically institution. H. Caesar Rai Chaudhary is the most important. The Rai Chaudhary is 1892 to 1957 reconstruct their history of ancient India and well doing so criticized V.A. Smith at many points. A stronger element appear in the written of R.C. is a Majumdar is 1880s and 1980, who is the editor of the multi-volume history and culture of Indian people. Until 1960, Indian scholar inspired by the idea of the nationalism glorified their histories of their respective religions and of the Indian as such. The merit of the expounding their myth of is a despotism and goes to the K.P. Jaiswal is the 1881 and 1937. He wrote about the extensive of Indian is republics and self-government in ancient India. After the independence, a new trend of history return took over. There was a shift toward the return of non-political history with a great emphasis on the society and the economics. The wonder that was India was one such as a pioneering work written by the A.L. Bhushan's 1940 to 1986. A further shift evidence in the D.D. Khoshbi is a 1907 to 1966. The book on the introduction to the study of Indian history. His treatment is a follow as a social economic accepted of ancient India history. After him, to large number of historians following there is a trend and focus on the social, economic, and cultural history. There is a main stress was on the mean of production and the social and economical relationship among different groups of people. यहाँ पर दोस्तों जो आया है हमारे समग्र इतिहास की बदलती अवधारणाएं। देखिए इतिहास की बदलती अवधारणाएं क्या है। कहते हैं एक धारणा विशेषकर जो है पश्चिमी विद्वानों द्वारा फैलाई गई कि प्राचीन काल के भारतीयों में इतिहास लेखन का कोई बोध नहीं था, जो कि बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि भारत के लोगों में भी इतिहास लिखने की जो है बहुत बड़ी चाव थी। मगर यह सत्य नहीं है। वास्तव में भारतीयों का इतिहास लेखन बोध जो है पश्चिम लोगों के भिन्न था। यानी भारत में देखा जाए तो उनको लिखने की पद्धति जो थी थोड़ा सा भिन्न था। पश्चिम में घटनाओं को जो है कालक्रम के अनुसार लिखा जाता था, जबकि जो है प्राचीन भारत की जो है पद्धति इससे भिन्न थी। इसका उदाहरण हम पुराणों में देख सकते हैं, जिनमें 4 विभिन्न युग थे, यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो ये 4 जो युग की बात की गई थी, तो हमें कैसे पता चला? यानी हमारे देश में ये सब बातें लिखी गई थी, तभी हमें जो है 4 युगों के बारे में पता चला, सतयुग, त्रेता, द्वापर और जो है हमारा कलयुग। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आता है इतिहास के बदलती अवधारणाओं के अंतर्गत। कहते हैं हर युग की जो है शासकों और राजवंशों की विस्तृत सूची भी हमें मिलती है, और इसके अतिरिक्त जो है कर्णिक लेखों की भी बड़ी संख्या मिली है, जिसमें विभिन्न राजवंशों के राजाओं के जो है वंशावली का और साथ ही उसकी उपलब्धियों का उल्लेख भी हमें मिलता है। इससे पता चलता है कि भारतीयों को घटनाओं के समय
काल और स्थान का जो है बुनियादी बोध हुआ करता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाता है। कहते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक खोज जो 1765 में आरंभ हुई थी, जब बंगाल और बिहार के जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गए थे। हिंदू विविध व्यवस्था लागू करने के लिए भारतीय वेद के प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति जो 1776 में अंग्रेजों ने अनुवाद किया था, यानी मनुस्मृति का जो है 1776 में अंग्रेजों ने इसको जो है अपने लैंग्वेज में जो है इसको अनुवाद किया था। और अंग्रेजों ने प्राचीन भारतीय नियमों और आचारों को जानने समझने के जो आरंभिक प्रयत्न किए थे, उन्हें सन जो है 1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के साथ पूर्णता प्राप्त भी हुई तथा ऐसी अन्य कई सोसाइटियों की जो है तत्वावधान में हिंदू धार्मिक तथा शास्त्रीय लेखन का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। इसके अध्ययन को सबसे अधिक बल जो है जर्मनी में जन्मे विद्वान मैक्स मुलर के जो है प्रयत्नों से काफ़ी सफलता मिली थी। अंग्रेजों ने भी जल्द ही समझ लिया कि भारतीय पर जो है अच्छी तरह से शासन करने के लिए अनेक धर्म ग्रंथों और समाज व्यवस्थाओं का ज्ञान आवश्यक है। कहते हैं ईसाई मिशनरी ने भी भारतीयों का जो है धर्मांतर करने और ब्रिटिश शासन को जो है सुखद करने के लिए भारतीय कानूनों और रीति रिवाजों को अधिक जानकारी हासिल करने की जरूरत को महसूस किया था। भारतीय लेखक का जो है अनुवाद करते हुए पश्चिम विद्वानों ने जताया कि भारतीय परिवर्तन के प्रति जो है अनिच्छुक होते हैं और अत्याचारी शासन के असभ्यत हो चुके हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट आता है। सन 1904 में जो है विल्यम ए स्मिथ ने जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी, ठीक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था ए स्मिथ का। यह प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास था, यानी देखा जाए तो ये पहला व्यवस्थित इतिहास था जो कि 1904 में जो है विल्यम ए स्मिथ ने जो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा, जो पहला व्यवस्थित इतिहास बना। लेखक ने इसमें जो इतिहास के ब्रिटिश के दृष्टिकोणों से देखा और भारत में ब्रिटिश शासन को आवश्यक ठहराने की चेष्टा भी की। अंग्रेजों का तानाशाही शासन बनाए रखने के लिए इनमें अच्छी प्रचार सामग्री का काम भी किया था। भारतीय विद्वान विशेषकर वे भी पश्चिम शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, यानी जो अगर देखा जाए तो समय भारतीय विद्वान ने भी बहुत सी शिक्षा जो थी पश्चिमी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे और इस बात से वो बड़े परेशान थे कि अंग्रेज लोग भारतीय इतिहास को अपने जरिए से अपने हित के अनुसार तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित होकर उनमें से कुछ ने इतिहास को फिर से लिखने का दायित्व उठाया ताकि भारतीय संस्कृति की वास्तविक गौरव को दुनिया के सामने लाया जा सके। और इस प्रकार के दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय इतिहासकार थे आर जी जो भंडारकर, जो 1837 से 1925 तक अपना कार्य करते रहे, और बी के राजवाड़े जो थे 1869 to 1926 तक उन्होंने अनेक स्रोतों से सामग्री एकत्र करके सामाजिक और राजनीतिक इतिहास को पुण्य रचना किया। यानी इन दोनों का जो है भारतीय इतिहास को बचाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया। ऐसा करते हुए उन्होंने बाल विवाह और जाति प्रथा जैसी कुछ सामाजिक बुराई पर भी प्रहार किया और जो है विधवा के पुण्य विवाह को जो है हिमायत भी की। कहते पीवी कणे ने जो 80 तक जो 1972 का जो योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था, यानी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र शीर्षक का एक विराट ग्रंथ की रचना की जिसमें प्राचीन भारतीय समाज के प्रमुख तत्व जो है पर प्रकाश डाला गया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आता है। इन भारतीय विद्वानों ने राजनीतिक संबंधी प्राचीन भारतीय ग्रंथ का गहराई से अध्ययन किया ताकि प्राचीन भारतीयों को प्रशासन संबंधी वृद्धि को जो है प्रमाणित किया जा सके। डी आर भंडारकर जो 1875 to 1950 तक अपना लेखन कार्य किए पूर्व लेखन विद्वानों के विद्वान में से एक माने जाते हैं। वह प्राचीन भारतीय सामाजिक संस्थाओं पर लिखे हुए ग्रंथ प्रकाशित किया करते थे। एच सी राज चौधरी ने 1892 से लेकर 1957 ने भारतीय प्राचीन के इतिहास का पुण्य लेखन आरंभ किया और इस क्रम में कई जो है बिंदुओं पर बी एम स्मिथ की आलोचना भी इन्होंने खास तौर पे किया, क्योंकि उन्होंने जो है भारतीय संस्कृति को तोड़ मरोड़ के पेश किया था बी एस स्मिथ ने, इसलिए जो है इनका आलोचना भी की गई। आर सी मजूमदार ने जो है 1888 से 1980 तक के लेखन में यह बात और भी मजबूत से उभारती है। उन्होंने कई खंडों में जो है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया जो है पीपुल्स का संपादन भी किया और 1960 तक जो है राष्ट्रता की भावना से प्रेरित भारतीय विद्वान अपने अपने क्षेत्रों को और भारत के इतिहास को गौरव को बढ़ा चढ़ा कर
दिखाते रहे। अंग्रेजों ने प्राचीन भारतीय शासकों को जो है अत्याचारी और निरंकुश होने के जो मिथ्या गाथा था उसे तोड़ने का श्रेय जो है केपी जायसवाल जो कि 1881 से लेकर 1937 को जाता है। यानी इसके दौरान उन्होंने जो है केपी जायसवाल ने बहुत बातों को जो है खंडित किया। उन्होंने प्राचीन भारत में गणतंत्र और स्वशासन को अस्तित्व के बारे में भी लिखा। स्वतंत्रता के बाद इतिहास लेखन में कई नई प्रवृत्तियां छाने लगी। अब राजनीति इतिहास में जो है हटकर समाज और अर्थव्यवस्था के इतिहास पर अधिक बल दिया जाने लगा और इस प्रकार की पहली रचनाओं में से एक थी A.L. वर्षम जो कि 1914 टू 1986 लिखित द 100 डे ऑफ इंडिया और D.D. कोसाविक जो 1907 से लेकर 1966 के ग्रंथ ए इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री में यह परिवर्तन और भी स्पष्ट हुआ। उनका लेखन प्राचीन भारतीय इतिहास के जो है सामाजिक आर्थिक पक्ष को लेकर चलाया था। उसके पश्चात बहुत सारे इतिहासकारों ने इस प्रवृत्ति का अनुसरण भी किया और अपने लेखन और सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास पर केंद्रित भी किया। उनका प्रमुख जो है बल उत्पादन के साधनों और विभिन्न समूहों को व्यक्तियों के बीच के जो है सामाजिक तथा आर्थिक संबंधों पर रहा। Our most important topic arrive here, a theme in Indian history. What is the theme of Indian history here? For on the overall knowledge of the past, students are to be made aware of various aspects of the society is called themes. And these themes enable us to learn about the development in a different sphere, social, economical, religious, political and cultural. The development in this is a sphere are so much is interlinked that they are often to break the boundaries between them. For example, when the pastoral society of the earlier Vedic age got transformed into the settled agriculture society in the later Vedic age, the political system changed as the consequence. The king who was the earlier now as a Gopati is a lord of cattle. Is the pastoral societies become a Bhopati is a lord of the land. And with the development of agriculture economics and with that is the war began to the fault of the acquiring more land instead of the cow. The king is gradually is become a powerful and the kingship hereditary. So we have noticed that a change in a different. In this course of materials, you will be learn about their development in the field of art, agriculture, caste system, science and economics, technology, and also about their rise and growth of various religious sects and schools. There is the most important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है भारतीय इतिहास की विषय वस्तु यानी क्या थीम हो सकते हैं। कहते हैं अतीत के संपूर्ण ज्ञान के लिए जो है विद्यार्थियों को समाज के विभिन्न पक्षों के जो है प्रति जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। इन पक्षों को जो है विषय वस्तु कहा जाता है यानी थीम्स कहा जाता है और सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनीति संस्कृति आदि विभिन्न क्षेत्रों में जो कुछ भी घटनाएं हुई है उनके बारे में हमें जानकारी भी मिलती है। इस तमाम क्षेत्रों में हुई घटनाएं परस्पर इतनी अधिक संबंधित होती है कि इनके बीच की सीमाएं अक्सर टूट जाती है। उदाहरण के लिए जब आरंभिक वैदिक युग का जो गोपालक समाज उत्तर वैदिक काल में जो है बस्तियों में बसे एक जो है कृषक समाज में बदला तो परिणाम स्वरूप राजनीति पद्धति में भी परिवर्तन आया। गोपालक जो है समाज में राजा गोपति कहलाता था यानी गोपालक समाज में राजा जो होता था क्या कहलाता था, गोपति कहलाता था और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के साथ वह भूपति कहलाने लगा। साथ ही जो है अब युद्ध दूसरे की गाय छीनने के लिए नहीं बल्कि अधिक भूमि हासिल करने के लिए होने लग गई। यानी पहले देखा जाए तो साथ ही कहते हैं युद्ध दूसरे गायों के छीनने के लिए नहीं होती थी बल्कि भूमि के लिए होने लग गई। राजा क्रमशः अधिक शक्तिशाली होने लग गए और राजा का पद वंश परंपराओं से मिलने लग गया यानी एक के बाद एक जो होगा राज्य वंश पे बैठेगा। तो हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के परिवर्तन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। प्रायः उनका प्रभाव बड़ी बड़ी घटनाओं पर भी पड़ता है और इस पाठ्य सामग्री में आपको कला सामर्थ्य जाति व्यवस्था जो विज्ञान और अर्थव्यवस्था के विषय में जो है विस्तार पूर्वक जानने को मिला और बहुत काफ़ी ये इम्पोर्टेंट भी था। कहते हैं इससे हम जो है प्राथमिक
और जो आधुनिक में भी काफ़ी हम जानने और समझने की कोशिश भी किया। प्लस हमने जो जितने भी तत्व लिए सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट थे प्राचीन इतिहास को समझने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है। प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।